بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ينفع آمین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ بیسک عربک گرامر کورس کے اندر آج کا ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 23 اور اس کے اندر ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں پیچیدہ مرکب اضافی۔ ابھی تک پچھلے 2 لیکچرز ہم نے مرکب اضافی کے اوپر پڑھے ہیں۔ مرکب اضافی جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ مرکب اضافی ایک ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جائے، جیسے کہ زید کی کتاب۔ یہاں پر کتاب کو زید کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے تو اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مضاف اور ایک ہوتا ہے مضاف الیہ۔ مضاف وہ چیز ہوتی ہے جو نسبت کے طور پر استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اور مضاف الیہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہو۔ جیسے اس مثال میں زید جو ہے وہ مضاف ہے اور کتاب جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ سوری، الٹا بول دیا، زید جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور کتاب مضاف ہے۔ اور جب ہم مرکب اضافی کو اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو آرڈر ریورس ہو جاتا ہے، مضاف جو ہے وہ پہلے آ جاتا ہے، مضاف الیہ بعد میں۔ یہ مرکب اضافی ہے جو سمپل مرکب اضافی، اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل سے لیکچر نمبر 21 میں پڑھا تھا۔ پھر اس سے جو اگلا لیکچر ہم نے پڑھا تھا لیکچر نمبر 22، اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ مرکب اضافی کے اندر ضمائر کا استعمال، یعنی زید کی کتاب کی بجائے اگر ہم یہ کہیں کہ میری کتاب یا اس کی کتاب یا تمہاری کتاب، تو اس میں جو 3 طرح کے پرسنل پروناؤنز استعمال ہو رہے ہیں، میرا، تمہارا، ہمارا، یا کسی دوسرے کی بات اگر ہم کریں، تو اس کو جب استعمال کرتے ہیں تو اس میں کیا پھر کس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کہ حالت جر کے اندر کس طریقے سے وہ اگزامپل لکھی جاتی ہے۔ تو آج کا لیکچر اگر کوئی سن رہا ہے اور اس نے لیکچر نمبر 21 اور لیکچر نمبر 22 اگر نہیں کیے اب تک، تو آج کا لیکچر اسے بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ لیکچر نمبر 21 اور لیکچر نمبر 22 کو اچھی طرح پریپیئر کر کے پھر آج کے لیکچر کی طرف آئیں، کیونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے اسی مرکب اضافی کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنا ہے ہم نے، اور جب ہم ایکسپینڈ کریں گے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے، یعنی کمپلیکس مرکب اضافی۔ اس کے علاوہ مرکب اضافی بنانے کے لیے جو قواعد ضروری ہیں جاننا، وہ پھر سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں تاکہ ریوائز ہو جائے۔ مضاف کے کچھ اصول ہیں، مضاف الیہ کے کچھ اصول ہیں۔ مضاف جو ہے وہ اگر ہم عدد کی بات کریں تو مضاف اور مضاف الیہ کے اندر عدد کے اندر کسی قسم کی کوئی مناسبت کی ضرورت نہیں ہے۔ مضاف بھی واحد مثنیٰ جمع میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، مضاف الیہ بھی واحد مثنیٰ جمع کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح زید کی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں، تو زید اگر واحد ہے تو کتابیں جمع ہے، تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان مطابقت ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ اسی طرح جنس کی اگر ہم بات کریں تو بھی مضاف اور مضاف الیہ کے اندر دونوں طرح کی جنس پائی جا سکتی ہے، مذکر مؤنث دونوں۔ یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ زید کی گاڑی، تو اب زید مذکر ہے اور گاڑی جو ہے وہ مؤنث ہے عربی کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو دونوں ڈفرینٹ جنس بھی رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ مطابقت ہو۔ جہاں تک وسعت کی بات ہے تو وسعت کے اندر مطابقت پائی جاتی ہے، لیکن کیونکہ مضاف کے اوپر ہم ال نہیں داخل کر سکتے، اس وجہ سے ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم پہچانیں کیسے کہ یہ نکرہ ہے یا معرفہ، کیونکہ ہمیں عام حالات میں وسعت کا کیسے پتا چلتا ہے کہ معرفہ ہے؟ اگر ال ہو، اور اگر اسم کے اوپر ال نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کیس ایسا ہے مرکب اضافی کا کہ مضاف کے اوپر ال داخل نہیں ہوتا، تو جب ال داخل نہیں ہوتا تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے اس کو ایز اے نکرہ لینا یا معرفہ؟ تو پھر ہم دیکھتے ہیں مضاف الیہ کی طرف۔ اگر مضاف الیہ جو ہے وہ معرفہ ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کا مضاف بھی معرفہ ہے۔ اگر کہیں گے کہ مضاف الیہ نکرہ ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مضاف بھی یہاں نکرہ کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ پھر آگے اعراب کی باری۔ اعراب کے اندر مضاف الیہ جو ہے وہ اس کا جر ہونا ضروری ہے حالت جر کے اندر۔ اسی لیے جب ہم نے لیکچر نمبر 22 کے اندر ضمائر کو استعمال کیا تھا مضاف الیہ کی جگہ پہ، تو کیونکہ مضاف الیہ کا حالت جر میں ہونا ضروری ہے، اسی لیے ہم نے ضمائر کا صرف وہ چارٹ نکالا تھا جو حالت جر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یہاں پہ استعمال ہوگا۔ پھر رہ گئی بات مضاف کی، تو مضاف جو ہے وہ رفع میں بھی ہو سکتا ہے، نصب میں بھی ہو سکتا ہے، جر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اعراب ہلکا ہوگا۔ اور اعراب ہلکا کیسے ہوتا ہے اس کی بھی ہم نے رولز پڑھے تھے۔
दो तरह की चीजें हो सकती हैं। अगर तो एराब में तनवीन आ रही है तो तनवीन को हल्का कर दें, यानी खत्म कर दें। यानी दो पेश हैं तो एक पेश ड्रॉप कर दें, एक दो जबर हैं तो एक जबर ड्रॉप कर दें, दो जेर है तो एक जेर ड्रॉप कर दें। और उसूल नंबर दो ये है कि अगर जो है वो ऐसा वाला है जैसे मुसन्ना और जमा सालिम मुजक्कर की जिसके आखिर में क्या आता है, नून। देखिए दो ही तरह के उसूल हो सकते हैं ना, दो ही तरह के नाउन्स हो सकते हैं राब वाले। या तो तनवीन होगी, अगर तनवीन नहीं है तो किस पे तनवीन नहीं होती? तनवीन सिर्फ उन पे नहीं होती जिनमें आनी, आईनी, आईनी या फिर ऊना, ईना, ईना लगता है, ठीक है, यानी मुसन्ना और जमा सालिम मुजक्कर। तो इनके अलावा बाकी सारे केसेस पे क्या आता है, तनवीन आती है। तो उसमें असूल नंबर वन लग जाता है। जहां तनवीन नहीं आती, जहां ये नून वाले आ जाते हैं, तो इनके साथ क्या होता है, इनकी नून ड्रॉप हो जाती है। जैसे ना किताबानी से किताबा, किताबईनी से किताबई। अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं दोबारा से क्लियरली मेंशन कर दूं, एराब को जो हल्का करना है वो सिर्फ और सिर्फ मुदाफ का करना है, मुदाफ इलेह का नहीं करना। ठीक है, ये नहीं है कि मुदाफ इलेह का भी जो है वो ड्रॉप हो रहा है नून, ऐसा नहीं करना। सिर्फ मुदाफ का, यानी कि जो अरबी के अंदर जब हम लिखते हैं तो जो हिस्सा पहले आता है, उर्दू में ये हिस्सा बाद में आता है, अरबी के अंदर रिवर्स ऑर्डर होने की वजह से मुदाफ पहले आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आती हैं और आपकी पिछली दो लेक्चर्स की अच्छी प्रैक्टिस है तो आज का लेक्चर आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। छोटा सा आज का लेक्चर है, और आज का लेक्चर है जी पेचीदा मुरक्कब इजाफी। इसका क्या मतलब है, दो मुरक्कब इजाफी को जब आपस में जोड़कर एक और मुरक्कब बना दिया जाता है तो उसको पेचीदा मुरक्कब इजाफी कहते हैं। जैसे कि जैद के लड़के की किताब। अब आपने देखा कि इसमें दो तरह के मुरक्कब इजाफी हैं, एक है जैद का लड़का, दूसरा है लड़के की किताब। दो तरफ निस्बत की जा रही है ना, पहले लड़के को जैद की तरफ निस्बत की जा रही है, फिर किताब को लड़के की तरफ निस्बत की जा रही है। ठीक है, तो जो ओवरऑल ऑर्डर बनता है कंबाइन करके वो क्या होता है कि किसी जैद, कोई जैद है जिसके लड़के के मुतालिक बात की जा रही है, और फिर उसके लड़के के साथ क्या बात की जा रही है कि उसकी कोई किताब है। तो इस तरह के तो हमारी काफी सारे होते हैं ना प्रॉब्लम्स, कि हम इस तरह की जब गुफ्तगू भी करते हैं तो या मजमून भी लिखते हैं तो हमारे पास जुमलों के अंदर पेचीदा मुरक्कब इजाफी तो वाफिर मिकदार में आ रहा होता है। तो ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, बस जो उसूल हैं मुरक्कब इजाफी के जो भी हम पढ़ के आए हैं, अगर आपको ये अजबर हैं, अच्छी तरह याद है, समझ में आते हैं, तो आपका काम बहुत आसान है। सिर्फ पकड़कर उसको जोड़ना है आपस में। किस तरह से जोड़ना है, पहले हम देखेंगे कि ये जो मुरक्कब इजाफी है पहला वाला, इसको अगर आप लिख ले तो क्या बनेगा। सबसे पहला काम क्या होता है, ऑर्डर रिवर्स करना। लड़का पहले आ जाएगा, जैद बाद में आ जाएगा। अब लड़का क्योंकि वलद कहलाता है तो वैसे तो वलदुन होना चाहिए, लेकिन हमने पढ़ा कि जो आपका मुदाफ है, जिस तरह इस केस में वलद है, तो उसके ऊपर दो चीजें होंगी, एक अल दाखिल नहीं होगा, दूसरा उसकी एराब हल्का होगा। तो हमने अल भी हटा दिया वलद से, और हमने इसके दो जो पेश थे उसमें से एक पेश भी ड्रॉप कर दी, तो क्या बना, वलदू। मुदाफिले इसमें जैद है तो जैद की क्या है, जैद की सिर्फ एक ही शर्त है, हालत जर में होना चाहिए। ठीक है, मार्फा तो वो पहले, ये मार्फा नकरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैद तो नाम है, नाम तो वैसे ही मार्फा होता है। तो वलदू जईदिन। ठीक है, अब आ जाए दूसरे दूसरे मुरक्कब इजाफी की तरफ, इसको भी इसी तरह ड्रॉ करना है। ऑर्डर रिवर्स किया, किताब की बात थी तो किताबू, क्योंकि अल नहीं लगना और तनवीन नहीं आनी, तो किताबू। और जब लड़का आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब लड़का किधर है, देखिए पहले लड़का किधर था इसमें, पहले लड़का मुदाफ था। अब यहाँ पे अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो लड़का क्या है, मुदाफिले। तो अब लड़के को क्या होना है, वलद के साथ क्या होना है, वलद को हालत जर में चले जाना है, यानी वलदिन। ठीक है, लेकिन अब हम इनको जोड़ेंगे कैसे, ठीक है, जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ने में भी ऑर्डर रिवर्स करना है। पूरे इस मुरक्कब इजाफी को उठाकर पहले ले आए, इस मुरक्कब इजाफी को बाद में ले आए। ठीक है, तो क्या होगा, किताबू उठाया, वलदिन, यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड किया है, मैं भी आपको बताती क्यों, क्योंकि ये वो चीज है जो कॉमन है दोनों में। ठीक है ना, किताबू वलदिन और वलदू जईदिन, तो किताबू एज इट इज आ गया, जईदिन भी एज इट इज आ गया। जो चीज कॉमन थी वो परेशानी कर रही है। कॉमन क्या थी, वलद। इसमें वलद क्या था, मुदाफिल है, इसमें वलद क्या था, मुदाफ। तो अब वलद के साथ क्या किया जाए, इसमें दोनों की शराइत को कंबाइन कर दिया जाए। हमने इसको एज अ मुदाफ भी देखना है और ऐसा मुदाफ इलैह भी देखना है। मुदाफ इलैह क्या कहता है कि इसको हालत जर में होना जरूरी है, इसीलिए हमने वलद को
वलदू नहीं लिखा हमने, वलदिन वाले पैटर्न पे उठाया, वलदी लिख दिया। और क्योंकि इस पे ये मुदाफ इले भी है, इस मुदाफ भी है, इसलिए इस पे ना तो अल आएगा और ना ही इसकी डबल तनवीन आएगी, एराब हल्का होगा। तो समझ में आ गई? तो अगर हम इसको कंबाइन करें इन सारे रूल्स को, तो आपको मैं एक सिंपल फिनोमिना देती हूँ। मैंने अभी पिछली जो स्लाइड अभी गुजरी है, यहां पर मैंने आपको इसकी बेसिक्स बताई हैं कि एक्चुअली प्रोसेस किस तरह से बनता है। अब मैं आपको वो चीज बताने जा रही हूँ जो आपको इतना लंबा चौड़ा लिख लिख के प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी कि आप पहले एक मुरक्कब इजाफी लिखें, फिर दूसरा लिखें, फिर क्रॉस करें। नहीं, अब रूल आपको समझ में आ गया है कि क्यों बीच में वलद के साथ जो है वो एक जेर आई है, अल भी नहीं है और वो रफा में भी नहीं है। उसकी वजह समझ में आ गई, क्योंकि वो मुदाफ भी है और मुदाफ इलैह भी है। अब मैं आपको वो रूल बताती हूँ जो सिंपल, आप इस तरह का कोई भी पेचीदा मुरक्कब इजाफी देखेंगे तो आपने करना क्या है। आप इसको सिंपल स्ट्रेट देखें, 3 हिस्से बने, जैद लड़का किताब, इसी तरह ऑर्डर में जैद लड़का किताब, ठीक है। जैद के लड़के की किताब, पहली चीज है जैद, दूसरा है लड़का, फिर है किताब। आपने क्या करना है, जो एक्सट्रीम केसेस हैं उनको कॉर्नर्स पे ले जाना है, ठीक है। सबसे पहले किताब, जो आखिरी चीज होती है ना, उसे आप सबसे पहले ले आए, क्योंकि वो कंफर्म मुदाफ है, ठीक है। उर्दू में मुदाफ हमेशा एंड पे आता है, अरबी में मुदाफ हमेशा पहले आता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस पूरे हिस्से का आखिरी इस्म उठाया और उसको सबसे पहले ले आया और उसके ऊपर मुदाफ के उसूल दाखिल कर दिए, जो कि क्या है, अल नहीं लगाना, दूसरा एराब हल्का करना, ठीक है। अब रफा में रखें, नसब में रखें, जर में रखें, आपकी मर्जी है। तब तक मर्जी है जब तक अभी ये जुमले का हिस्सा नहीं है, मुरक्कब है। जैसे ही जुमले में आता है तो फिर हमें देखना पड़ता है जुमले में इसके आगे क्या है, इसके पीछे क्या है, क्या ये खबर में है, क्या ये मुब्तदा में है, वो फिर एक अलग कहानी होती है। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ मुरक्कब बनाना है तो आप चाहे इसे किताबू लिखें, किताबा लिखें, किताबी लिखें, कोई नुकसान नहीं है। बस इसके ऊपर मुदाफ के शराइत दाखिल करनी है। उसके बाद आप दरमियान वाली चीज दरमियान में ही रहने दें। अब आप ये देखें कि दरमियान वाली चीज को आपने ये जहन में रखना है, इसके लिए असूल पक्का कर लें कि पेचीदा मुरक्कब इजाफी के अंदर जो दरमियान वाला सेंटर वाला इस्म है, उसके अंदर आपने उसे हर हालत में हालत जर में रखना है, हर हाल में, ठीक है। यानी जेर आएगी और एक ही जेर आएगी और अल भी नहीं आएगा, बस ये असूल पक्का कर लें। ना तो दरमियान वाले में अल आएगा और ना ही 2 जेर आएंगी, सिर्फ एक जेर। इन शॉर्ट, दरमियान वाला इस्म हमेशा अल के बगैर और एक जेर के साथ होगा, बस इतना याद रख लें, ठीक हो गया। और फिर थर्ड पार्ट जैद जो है, क्योंकि जैद क्या था, मुदाफिल है, तो इसके अंदर आप इसको एंड में ले आए और इसको आप हालत जर दे दें, ठीक है। तो क्या बन गया, ओवरऑल जैद के लड़के की किताब, किताबू वलदी जईदिन, किताबू वलदी जईदिन, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको जमायर के साथ करा देती हूँ, जैसे कि मेरे घर का दरवाजा। अब इसमें क्या है, मेरा घर और फिर घर का दरवाजा, ठीक है। तो अब पहले हमने क्या पार्ट्स तोड़ने हैं, मेरा यानी जमीर आ गई इसम, फिर घर, फिर उसके बाद दरवाजा। तो सबसे पहले क्या करना है, दरवाजे को उठा के पहले ले आए, बाब तो बाबू, फिर घर को दरमियान में ले आए, दरमियान में लाके क्या करना है, अल नहीं लगाना और एक जेर डालनी है, तो बैती। उसके बाद मेरा, मेरा की क्या जमीर थी हालत जर में, छोटी ये, ठीक है ना। अगर यहाँ पे होता हमारा घर तो यहाँ पे क्या आना था, नून अलिफ ना। अगर यहाँ पे होता तुम्हारा घर, किसी मेल की तरफ इशारा करके, तो यहाँ पे का आ जाता, काफ जबर का। अगर किसी फीमेल की तरफ इशारा करके कहा जाता तुम्हारा घर, तो फिर उसमें काफ जेर की आ जाता। अगर तुम सबका घर आ जाता तो क्या था, कुम। अगर हम सबका आ जाता तो ना, ठीक है ना। और अगर उसका आ जाता किसी एक मेल की तरफ, तो छोटी गोल हा लग के ऊपर पेश आ जाती हु, ठीक है ना। और अगर फीमेल का होता तो ही। वो सारा चार्ट आपके जहन में है, सिर्फ आपने ये लेटर्स उठा के आगे डाल देने हैं, कुछ भी नहीं और करना। तो अब इसके क्या बनेगी, बाबू बैती। इसको हम पढ़ेंगे तो ई पे जोर देंगे, क्यों, क्योंकि प्रॉपर या की साउंड आ रही है अब। अगर आप सिर्फ कहेंगे बाबू बैती तो वो तो नहीं बनेगी बात। जब आप कहेंगे बाबू बैती, फिर आपका मकसद मुरक्कब इजाफी का पूरा हो जाएगा, मेरे घर का दरवाजा, ठीक हो गया। तो ये थी एग्जाम्पल्स। और
यही बस आज का लेक्चर, और ये एक बस स्लाइड है जिसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस के कुछ है, क्योंकि पूरे इतने बड़े कुरान के अंदर से मुझे मुश्किल हो रही है कि मैं आयत में से ढूंढूं एग्जांपल्स इसकी। तो इसीलिए, क्योंकि एक होता है ना, कभी आयत पढ़ते पढ़ते सामने आ जाती है तो फिर बंदे को आता है हाँ ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी है। लेकिन अगर मुझे लेक्चर बनाते हुए मैं अगर पूरा सिपारा खोल के बैठूं या कोई सूरतें, तो क्योंकि ये इतनी कॉमन प्रैक्टिस नहीं होती, तो इसीलिए जो है मुझे इतनी आसानी से कोई मिली नहीं। तो फिर मैंने खुद से कुछ एग्जांपल्स बना ली हैं। इस वजह से आपको ये आपके सामने मैंने ये 5 एग्जांपल्स लिखी हैं। आप में से अगर कोई करना चाहता है तो ट्राई करे, ठीक है, वन बाय वन। अच्छा अहमद, आपने क्या करना है तो बताओ, उसी तरीके से आपने करना है। पहले मुझे बताओ कि ये अल्लाह के रसूल की मस्जिद में 3 इसम क्या है, लाइन वाइज बताओ। मस्जिद, सबसे पहले अच्छा, स्टार्ट करो अल्लाह, लाइन। अल्लाह, रसूल और रसूल, मस्जिद। मस्जिद, सबसे पहले क्या आएगा? मस्जिद, मस्जिद, और मस्जिद के साथ क्या आएगा? रसूल। नहीं, मस्जिद के ऊपर क्या आएगा? मस्जिद मस्जिद के के अराब लगाओ ना। मस्जिद के ऊपर वो आएगा, पेश, तो क्या बनेगा? मस्जिदू, मस्जिदू। दूसरा इसम क्या आएगा? रसूल, रसूल के साथ क्या होगा? रसूली, रसूली, जेर के साथ। और फिर अल्लाह, अल्लाह के साथ क्या आएगा? अल्लाह के साथ अल्लाहू, अल्लाह अल्लाह, बिल्कुल एंड पे चला गया ना, तो आखिरी जो होता है वो हालत जर में जरूरी होता है, अल्लाह ही। अल्लाह ही। तो ये बन जाएगा आपका मस्जिदू रसूलिल्लाही। ठीक है, मस्जिदू रसूलिल्लाही। वैसे हम जब पढ़ते हैं अल्लाह का रसूल तो हम क्या कहते हैं? रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाह। लेकिन जब हमने मस्जिद का भी साथ में इजाफा कर दिया तो अब क्या है? मस्जिदू रसूलिल्लाही। अब लाम के नीचे जेर आ गई। तो ये देखें, एक जेर कितनी इंपॉर्टेंट थी। उसने क्या बताया कि अभी निस्बत कंप्लीट नहीं हुई, ये कंप्लीट मुरक्कब इजाफी बन गया। अच्छा, अब आप लोगों में से कौन और करेगा? अल्लाह की रहमत के दरवाजे, कौन है जो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना चाहेगा? हैंड रेज करें, खुद से नहीं बोलना बीच में। जी आयशा, आप बताएं। दरवाजे यहाँ पे जमा है, ठीक है। अबवाब अब्वाबू रहमतिल्लाहि। रहमतिल्लाही, वेरी गुड। देखें, अब्वाबू रहमतिल्लाही, जबरदस्त। अच्छा, और कोई? नेक्स्ट, मस्जिद के इमाम का बयान। बयान को बयान ही आप रखें और इमाम को भी इमाम ही अरबी में। तो बताएं, कौन बताएगा? सादिया दाऊद जी, आप बताएं, मस्जिद के इमाम का बयान। बयान इमाम मस्जिद। हाँ, बयानु इमामी। आगे मस्जिद, मस्जिद के साथ क्या आएंगे यार, आप बताएं उसके। मस्जिद दिन, मस्जिद। मस्जिदिन, मस्जिदिन, जर में, हालत जर में जरूरी है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि मस्जिद किसी का नाम नहीं है जी, ना। मस्जिद मार्फा नहीं है, तो आप इसको एज अ मार्फा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नकिरा भी। अगर आप इसको एज अ नकिरा इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे बयानु इमामी मस्जिदिन। और अगर आप इसको एज अ मार्फा इस्तेमाल करेंगे तो आप अल दाखिल कर सकते हैं मस्जिद पे, तो आप क्या कहेंगे? बयानु इमामिल मस्जिदी। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा जी, अब अगला जो फजर है कह वो, रहे जी अपना माइक म्यूट कर दें। हैं। फजर की अजान की आवाज, आवाज को कहते हैं सौत। अजान को अजान ही कहते हैं, फजर को फजर ही कहते हैं। आयशा अली, आप जवाब ऑलरेडी दे चुकी हैं, अब कोई और ट्राई करे। रुखसाना बाजी, आप बताना चाहेंगी? सौत बोलते हैं आवाज को। صوت صوت آذان अजानी। از आगे ف- فجر फजरी, फजरिन, या फिर अल फजरी, ठीक है। अच्छा जी, सौतु अजान इल फजरी, ठीक है, अजान इल फजरी सही हो गया, जबरदस्त। अच्छा, अब ये लास्ट कौन करेगा? अम्म मैं पूछती हूँ, सिदरा, चलें ठीक है। सिदरा, आप करें, मोमिनों के अमाल का अजर। ओके, अजर पहले आ जाएगा। जी, तो अजरू, अजरू, अमाल को अमाल ही कहते हैं। जी जी, अमाल ही होगा। अमाली, हम्म, आगे मोमिनू, मोमिनू नी,
मोमिनूनी, अच्छा, मो नहीं, यहाँ फंस गई। इसको कौन करेक्ट करेगा? अजरु आमाली, आगे आगे क्या आएगा? एक मिनट है। लिल, जकिया नहीं, कौन, किसी ने हाथ रेज किया है? ये दोनों बता चुके हैं, कोई और बताए? जकिया आप बताएंगे यहाँ क्या हो सकता है, क्या गलती हो रही है? एंड में लास्ट वर्ड मोमिनून जो है उसको किस तरह से आप लिखेंगे एराब? अच्छा अहमद आप बताओ। मोमिनी, मोमिनू, नहीं अहमद जी, आप क्या बता रही हैं? मोमिनीना, मोमिनीना। मोमिनीना, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, मोमिनून को भी आपने हाँ जेर दे दिया ना। हाँ, ऊना, ईना, मोमिनी, ईना, ठीक है, रफा नस्ब जर, ठीक वो जो चार्ट बिल्कुल शुरू में याद किया था ना, वो यहाँ आके काम आ रहा है। ठीक है, ठीक है, मोमिनूना से मोमिनीना बनेगा। मोमिनीना, ठीक हो गया ना? तो ये बस एक थोड़ी सी ट्रिकी चीज होती है कि हमें वो भूल जाता है ना, हमें वो इतनी आदत होती है कॉमन में लिखने की ना, क्या नाम है उसकी, पेश और जबर और जेर को इस्तेमाल करने की, कि हम भूल जाते हैं कि बेसिकली ये ऊना और ईना वाली आवाजें हैं। इसी तरह आनी और आईनी वाली आवाजें, अगर यहाँ पे दो मोमिन होते तो अल मुमी क्या होता? मोमिनूना, नहीं, आनी से आईनी हो जाता। अल मोमिनी, मुमी, नहीं नहीं। ठीक है, तो ये जो हालत जर है, बस ये जहन में रखना है कि जो मुरक्कब इजाफी का एंड होता है उसमें हमेशा हालत जर में इसम को आना लाजमी है। और अब आप देखें कि ये जो मैंने चार्ट लिखा है इसके अंदर एग्जाम्पल्स में मैंने अल लगाया, आप चाहें तो अल हटा भी सकते हैं। अगर यहाँ पे अल हट जाएगा तो नॉर्मल इसम आएगा, मस्जिदिन हो जाएगा, फजरिन हो जाएगा, या मुमिन मुमिन मुमिनीना मुमिनीना ही रहेगा। ठीक है, इसके साथ अल लगे या ना लगे के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो है आज आपका लेक्चर था, आज का इतना ही काफ़ी है। और उम्मीद है आपने फिर से बहुत कुछ सीखा होगा। पहले मेरा प्लान था कि मैं इसके फौरन बाद एक टेस्ट लूँ, लेकिन अभी टेस्ट लेने का इतना टाइम नहीं है क्योंकि रमज़ान जो है वो बहुत करीब है, और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि अभी मैं एक और टेस्ट लूँ। तो अपने प्लीज़ माइक म्यूट कर दिया करें, बीच में बहुत शोर आने लग जाता है जी। अच्छा, तो मैंने अभी ये प्लान किया है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि हम कितना प्लान में कामयाब होंगे। मैंने प्लान ये किया है कि एक मुरक्कब बच गया है और वो है मुरक्कब जारी। ठीक है, अगर आपने मुरक्कब जारी भी सीख लिया तो इंशाल्लाह ताला आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस से मेरी क्या मुराद है? वो सेंटेंसेस जिसमें अभी नहीं नहीं आता, यानी अभी तक तो हम पॉजिटिव चीजें पढ़े हैं ना, वो जैद की किताब है, जैद के लड़के ने ये किया नहीं, सॉरी फेल तो भी आया ही नहीं, लेकिन हमारी हर चीज अभी पॉजिटिव में हाँ हाँ में जा रही है। ठीक है, अभी ना में कुछ भी नहीं आया। जैसे अगर मैं कहूं कि ये अहमद नहीं है, तो वो एक डिफरेंट सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में आ जाएगा, उसके रूल्स फर्क हो जाते हैं। या फिर अगर मैं क्वेश्चन करूं क्या ये अहमद है, या अहमद कहाँ है, या ये बात क्यों है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन भी अभी हमने नहीं सीखे। तो वो फिर एक नेक्स्ट हमारा सेशन होगा, और वो इंशाल्लाह ताला हम फिर रमजान के बाद कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं चाह रही हूं कि आप लोगों को मुरक्कब जारी करा दूं ताकि आप एटलीस्ट एक बड़ा सेंटेंस खुद बना सकें, इस काबिल हो जाएं कि आपको ये तमाम सेंटेंसेस विदाउट नो और विदाउट क्वेश्चन एटलीस्ट आपको वो लिखने पढ़ने उनको ट्रांसलेट करना समझ में आ जाए। इसीलिए फिर इंशाल्लाह अल्लाह जो है वो दुआ करे मेरी सेहत रहे, हर चीज़ ठीक रहे, तो इंशाल्लाह ताला जुम्मे के दिन ये जो कमिंग फ्राइडे आ रहा है इसके अंदर हम मुरक्कब जारी करेंगे। और उस पर भी क्योंकि 2 सेशंस चाहिए, तो मैं ये प्लान कर रही हूँ कि मुरक्कब जारी का एक सेशन नेक्स्ट फ्राइडे और एक सेशन जो है वो नेक्स्ट मंडे रख लिया जाए, क्योंकि हमें नहीं पता रोज़ा जो है वो सैटरडे को होगा या संडे को होगा, तो फिर रोज़े से एक दिन पहले क्लास रख ली तो वो फिर प्रेपरेशन रोज़े की जो है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं, मेरी कोशिश ये होगी कि पॉजिटिव सेंटेंस बनाना, इस जो है जुमला इस्मिया, उस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लें टिल नेक्स्ट मंडे। अल्लाह सेहत के साथ जिंदगी रखे सबकी, तो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंडे तक 2 क्लासेस अटेंड करके मुरक्कब जारी को भी कंप्लीट कर लेंगे। वाइल आपने अभी प्रैक्टिस क्या करनी है, आपने प्रैक्टिस अब खुद करनी है। एक शॉर्ट सा आप लिखें ऐसे माई सेल्फ के ऊपर,
बचपन में लिखा था ना 5 लाइनों का, 6 लाइनों का, पहले बच्चों को नर्सरी में 5 लाइनों का लिखवाते हैं, 1 क्लास में 10 लाइनों का। मेरा नाम ये है, मैं फलां जमात में हूँ, या मेरी उम्र ये है, इस तरीके से करके, ठीक है ना। अपने बारे में या उसमें कुछ भी आप छोटे छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस जिसके अंदर या तो मुरक्कब इजाफी आ रहे होंगे या आपके मुरक्कब तौसीफी आ रहे होंगे, एक आधा उसके अंदर आप जो है वो हमने और कौन सा मुरक्कब पढ़ा है, तौसीफी, इजाफी, और क्या और पढ़ा था, मुरक्कब इशारी। इशारी। ठीक है, आप कोशिश करें 5 to 10 सेंटेंसेस के अंदर उर्दू में पहले एक ऐसे लिखें जिसके अंदर आपके ये तीनों मुरक्कबात इस्तेमाल हो रहे हों, और फिर उसको आप सारी अरबी में ट्रांसलेट करें, और फिर वो आप मुझे अपने ओन पर जब दिल करे भेज दें, मैं उसमें से आपकी गलतियां निकाल के आपको भेज दूंगी। ठीक है, अभी के लिए आपकी ये बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपने ये कर लिया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हमने तीनों मुरक्कबात को समझ लिया है। ठीक हो गया, ये काम आपने करना है, और इंशाल्लाह ताला जुम्मे के दिन हम मुरक्कबे जारी पढ़ने जा रहे हैं। तो ये था आज का लेक्चर, और उम्मीद है कि आप लोग सीख भी रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जिस दिन प्रैक्टिस छोड़ दी तो फिर समझें सारी मेहनत ज़ाया हो गई, तो इसकी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफा फरमाए और हम सबको अपनी अमान में रखे। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।